Welcome to IAS Setu. My name is Amit Gak. Now here in this video I tell you about IAS, like ranking, कितनी ranking तक आपको IAS मिल सकता है, about the pay, about the perks, बंगला गाड़ी and all, security guard, about the training जो हमारा इंस्टीट्यूट है IAS के लिए, दैट इज़ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना जिसको बोलते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक ड्रीम प्लेस है एंड दिस इज़ अ ड्रीम पोस्ट। तो इसके बारे में जानेंगे कि हम कितनी रैंकिंग तक IAS मिलता है, क्या पे है, क्या पर्थ है, क्या कहाँ क्या के कैसे कैसे पोस्टिंग होती है और ट्रेनिंग कितने फेजेस में होती है। तो आज हम जानेंगे अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वेलकम टू IAS सेतु, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। Now here ranking, it depend, like general category around up to 80 rank they get IAS, depend on the year, depend on the number of seats, a rough idea 70 to 80 you can say. For OBC, like it is 100 to 120, sometime up to 150 rank also OBC people they get proper IAS. SC around 270 rank, up to 270 to 80 rank they get. ST around 300 320 rank they get, and physically handicapped, like here up to 400 450 rank also this physically handicapped people they get proper IAS. For general category 70 80, because number of seats on an average, like for IAS we have 150 to 200, so 50% of that you can consider. So general like up to 80 90 at the max. So here general category people they get IAS. After that IPS or their choice, maybe Indian Foreign Service, some people they choose for Indian Foreign Service. OBC 100 to 120, sometimes up to 150 also they get proper IAS. SC 250 270 280, it depend like how many number of seats. If number of seats are only 500 it will be less. If number of seats are 1000 1100, so up to 300 rank also SC get. Scheduled caste people they get IAS, scheduled tribe people physically handicapped. Now we talk about the training, we talk about the posting, like here 4 साल के बाद कहाँ क्या मिलता है, आफ्टर 8 year of service, आफ्टर 10-12 year of service, 20 year of service, 25 year of service, कैडर। लाइक हेयर आपने सुना होगा, लाइक सम पीपल वो वैसे ही नेगेटिव रहते हैं, कहते हैं कि आपको मणिपुर मिल जाएगा। सी आई टेल यू, कोई मुकाबला नहीं है IAS का, वेदर यू गेट आसाम मणिपुर कैडर, you get any other cadre, Assam, Meghalaya, there is a joint cadre. So I tell you about the cadre also. What is that cadre system? And like here, new system for this cadre allocation, pay, perks, and this ministry of personnel. There is one department of personnel and training, जो इनके साथ डील करता है IAS के साथ। एक बार UPSC ने रैंकिंग दे दी, उसके बाद DOPT is the nodal department here. So now here, this is general I told you, around 70 to 80, OBC 100 120, sometimes up to 150, around 270, around 320 350, it is up to 400 450 also. Sometimes physically handicapped people they get IAS, proper IAS. Now here the most important thing, training, जिसका सबको चाम रहता है, मतलब आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं बट एक IAS की पोस्ट नहीं। ओके, और ये 2 साल की जो ट्रेनिंग है मसूरी की, काफ़ी लोगों का ड्रीम्स रहता है। क्यों, क्या खास है इस ट्रेनिंग में? नाउ वी विल सी हियर। दिस इज फर्स्ट इज FC, फाउंडेशन कोर्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट फाउंडेशन कोर्स हियर? अप्रोक्सीमेटली 100 डेज का होता है एंड इट इज़ एट लबासना। IAS का तो फाउंडेशन कोर्स होगा ही लबासना में। लाइक हियर, because of the strength, because of the number of selected candidate more, so here FC 2-3 जगह होता है, अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी होता है, लेकिन IAS की सारी ट्रेनिंग लबासना, दैट इज़ द पेरेंट अकेडमी ऑफ IAS पीपल। जनरली अगस्त टू दिसंबर, जनरली ये अगस्त मंथ में स्टार्ट होते हैं, दिसंबर मंथ तक ये FC चलता है, फाउंडेशन कोर्स जिसको बोलते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हियर? ट्रैकिंग, वो आपको ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे हिमालयस में। वैसे भी मसूरी जो है, ये मसूरी में है आपकी एकेडमी,
इट इज़ इन मसूरी। ट्रैकिंग के लिए क्या करते हैं वो लोग, 15 से 20 ग्रुप बनाते हैं, हर ग्रुप में 15 से 20 प्रोफेशनल्स। सो हेयर यू हैव वंडरफुल ट्रैक्स ओवर देयर। आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, आपके साथ सब फैसिलिटीज़ होंगी जो कि एक ट्रैकिंग पे चाहिए होती है। Now here in each group 15 to 20 प्रोफेशनल्स। विलेज विजिट 7 to 8 डेज की विलेज विजिट भी होती है, FC का पार्ट है। एंड हियर इन दिस FC, like this is your Mussoorie Academy, Labasna, wonderful place. This tag, this logo, dream है मतलब, on your T-shirt, on your back, okay. So this logo is very very like here encouraging. So we have classes, sports activities are there, horse riding, swimming, मतलब you think about the sports activity you have, theater activity, theater, extracurricular activities. So here every week there is some extracurricular activities so that like here you get engaged over there and wonderful. Or like this academy can afford the best resource. जिस भी फील्ड में देखेंगे, इकोनॉमिक्स आपके आते हैं यहाँ पे लेक्चर देके जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब बेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया वो इस एकेडमी में आता है और आपसे इंटरेक्ट करता है। फिर आता है FC एग्जाम, फाउंडेशन कोर्स जब खत्म होने वाला है उसका एग्जाम होता है। आफ्टर FC अदर सर्विस प्रोफेशनल गो टू देयर पेरेंट एकेडमी, लाइक पुलिस वाले हैं वो हैदराबाद चले जाते हैं। तो इस तरह से फॉरेन सर्विस वाले उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है। आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस ऑल्सो कि IPS का कैसे क्या क्या ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, क्या चीज़ है। तो ये आ गई आपकी FC जो कि 100 डेज की रहती है, वंडरफुल मसूरी में ट्रैकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट उसके बाद आपका स्टार्ट होता है फेज़ 1। 4 फेजेस में IAS की ट्रेनिंग होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 है आर्मी अटैचमेंट, 7 to 8 डेज होता है। फॉर दैट लाइक यू गो टू जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, डिपेंड। कुछ लोगों को जम्मू भेजा जाता है, कुछ प्रोफेशनल्स कश्मीर जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 7 to 8 डे आर्मी अटैचमेंट यू पीपल है। This picture is I have taken from internet, not the exact picture here. So here army attachment we have. Next is other attachment here, 3 to 4 days in phase 1. You have Air Force attachment, Navy attachment, Smart City attachment, Environment attachment, Island attachment, City attachment. Wonderful experience. Next is Bharat Darshan. So here for 50 days आप भारत के डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्लेसेस पे घूमेंगे विद ऑल फैसिलिटीज़। भारत दर्शन जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 50 डेज 10 रूट बनाए जाते हैं, लगभग 170 से 190 प्रोफेशनल है। हर रूट पे लगभग 17 to 19 प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप होता है। तो 10 डिफरेंट रूट्स भी है। Like you get chance to visit Jammu and Kashmir, Ladakh part, Nubra Valley, मतलब वंडरफुल कोल्ड डेजर्ट है ये इंडिया का। काफ़ी लोग जो एडवेंचरस होते हैं वो जाते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पे भारत दर्शन में सब कुछ दिखाया जाएगा। स्पीति वैली, लखनऊ, वाराणसी, डिपेंड आपका रूट क्या है। कोलकाता, सुंदरवन, नॉर्थ ईस्ट, पूरा इंडिया, मतलब 10 रूट में डिवाइडेड है। अंडमान 6 से 7 दिन आपको अंडमान घुमाया जाएगा। मतलब आप ऐसे ऐसे आइलैंड विजिट करेंगे तो यू फील लाइक वंडरफुल। लक्षद्वीप, केरला, बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात, दिल्ली। फिर आता है लास्ट में जब भारत दर्शन खत्म होने वाला होता है, आपका होता है NSG अटैचमेंट दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अटैचमेंट। फिर आपको 8 से 10 दिन का ब्रेक दिया जाता है। देन यू आर बैक टू योर अकेडमी, फिर आप अपनी अकेडमी में वापस जाएंगे। ये भारत दर्शन 50 डेज वंडरफुल एक्सपीरियंस यू हैव नाउ हियर। सो फिर टिल मे यू आर इन दैट अकेडमी, LBSNAA नाम ही काफ़ी है। फिर आता है फेज़ 1 का एग्ज़ाम। फेज़ 1 के एग्ज़ाम होते हैं, फेज़ 1 ट्रेनिंग पार्ट के। नेक्स्ट इज देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट। आपको जो भी कैडर मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कैडर मिला हरियाणा, तो आपको हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता है। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, क्योंकि आप उस सिस्टम में इंड्यूस हुए हो। तो
अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ की ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी. प्रोबेशनर गो टू देयर रिस्पेक्टिव कैडर. आई टॉक अबाउट दिस कैडर फॉर फील्ड ट्रेनिंग. इसको बोला जाता है फील्ड ट्रेनिंग. आपको तहसीलदार का वर्क सिखाया जाता है, सब डिवीजन वर्क. मे हैव इंडिपेंडेंट चार्जेस. आपको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द डीसी. उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी के पास अथॉरिटी है कि आपको क्या चार्जेस दी जाए. तो डीसी डिसाइड करता है कि आपसे क्या काम करवाना है इस 11 मंथ में. कुछ प्रोविजन को इंडिपेंडेंट चार्जेस भी मिल जाते हैं. तो यू हैव एवरीथिंग, बंगला, गाड़ी, लाइक एयर सिक्योरिटी गार्ड, ओके, स्टाफ एंड ऑल. फेज 2, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होती है, देन यू कम बैक टू योर अकेडमी, LBS, लबासना, NAA. तो ये फेज 2 लगभग 45 to 50 डेज की होती है. आफ्टर फील्ड ट्रेनिंग बैक टू लबासना फॉर फेज 2 ट्रेनिंग. यही पहले 2 साल मतलब सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है. उस ट्रेनिंग में पहले होता है FC, फिर होता है आपका फेज़ 1 जिसमें आपका भारत दर्शन भी हो रहा है, फिर उसके बाद आपकी होती है फील्ड ट्रेनिंग, फिर होता है फेज़ 2. दोबारा से आप अकेडमी जाएंगे 45 दिन के लिए. प्रोवेशनर शेयर देयर एक्सपीरियंस. तो जो प्रोवेशनर है वो अपना फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एकेडमिक क्लासेस चलते हैं, फिर फेज़ 2 का एग्जाम होता है लास्ट में. नाउ हियर देयर वाज ए न्यूज़, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट proposes to cut the duration of induction training. ये जो 2 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है आफ्टर योर सिलेक्शन, इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोला जाता है. फॉर IAS ऑफिसर फ्रॉम एग्जिस्टिंग 103 वीक. ओके, एक ईयर में 52 वीक होते हैं, नियरली 2 वीक की होती है, टू 75 वीक. इसको कम करने की बात हो रही है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किरण अग्रवाल कमेटी. तो कोई किरण अग्रवाल कमेटी है, रिकमेंडेशन दिया था रादर देन लाइक हियर 2 ईयर, इट हैज़ टू बी 1.5 ईयर. ओके, तो ये रिकमेंडेशन है, देखते हैं लाइक व्हाट विल हैपन. नाउ हियर आफ्टर दैट यू हैव सर्विस, यू आर SDM, DC. आफ्टर योर 8 ईयर ऑफ सर्विस और 8 to 12 ईयर देयर इज ए ट्रेनिंग, फेज 3 ट्रेनिंग. मतलब मैं जो सीनियर IAS ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, वो होती है वहीं पे LBS NA लबासना में. क्योंकि लाइक दिस लबासना इज द पेरेंट ट्रेनिंग अकेडमी फॉर दिस IAS पीपल. फिर आता है फेज 4, होता है अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर ऑफ जॉब के बाद. फॉर IAS पीपल एक फेज 4 ट्रेनिंग भी होती है. नाउ नेक्स्ट इज पोस्टिंग, SDM. फिर होता है ADC और ADM, डिपेंड ऑन द स्टेट्स. कुछ स्टेट में लाइक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DC, DM. आपने सुना होगा कि DC है. यूपी बिहार में बोलेंगे कि DM है, ये इस डिस्ट्रिक्ट का DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मोरलेस से. इन बिग डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर. आफ्टर दिस डिविजनल कमिश्नर पोस्ट इज ऑल्सो देयर. सो वी विल सी दैट इन डिटेल क्या क्या है पोस्टिंग के बारे में. दीज आर द ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड है. पहले सबसे पहले होता है जूनियर टाइम स्केल, इनिशियल ईयर. इसमें लाइक आप बनते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि SDM है इन ए सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. लाइक कुछ डिस्ट्रिक्ट में 4 सब डिवीजन है, कुछ में 2 है, कुछ में 10 हैं. तो एक डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइडेड किया होता है. सेक्शन ऑफिसर इन द स्टेट सेक्रेटरेट. ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही फील्ड में भेजा जाएगा. समटाइम्स यू हैव योर पोस्ट इन द सेक्रेटरेट, तो वहाँ पे आप सेक्शन ऑफिसर होंगे एंट्री लेवल पे. असिस्टेंट डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कुछ IAS स्टार्टिंग से लाइक यार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, तो आपकी रैंकिंग होती है असिस्टेंट डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आफ्टर 4 ईयर सीनियर टाइम स्केल. आपका प्रमोशन होता है 4 साल के बाद, आपको मिल जाता है सीनियर टाइम स्केल. इसमें आप बनते हो ADC, ADM और ADC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल कलेक्टर जो बोला जाता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में एक DC होता है, एक ADC होता है. तो यू गेट ए चार्ज ऑफ ADC और अंडर सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट. अगर आप सेक्रेटरीट में बैठे हो तो आप हैं अंडर सेक्रेटरी, और ये दोनों बराबर है. मतलब ADC और अंडर सेक्रेटरी बोथ आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो कि 6 साल की 6th ईयर ऑफ योर जॉब आपको मिलता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड. नाउ यू बिकम DM, डिपेंड ऑन द स्टेट. कुछ स्टेट में 10 साल में DM बनते हो, कुछ स्टेट में 6 साल में, ऐसा फिक्स नहीं है. बट ऑन एन एवरेज 6th ईयर में आप DM बन जाते हो, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट. इफ यू आर इन द स्टेट गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरेट होता है कैपिटल में होता है, वहाँ पे आप एडिशनल सेक्रेटरी होंगे. और ज्वाइंट डायरेक्टर
डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपका डेजिग्नेशन होगा डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ग्रेड। 10 साल की सर्विस के बाद यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, बड़े डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाए आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में आप राजा हो। मतलब डीसी को राजा बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि आपको सब डिपार्टमेंट के ऊपर आपका होल्ड है, तो आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और स्पेशल सेक्रेटरी इन द स्टेट, या आप स्पेशल सेक्रेटरी बनते हो या डायरेक्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपका डेजिग्नेशन बन जाता है डायरेक्टर का। नेक्स्ट सुपर टाइम स्केल, ये मिलेगा आपको 17th ईयर, 16 साल की डिविजनल कमिश्नर इन ए डिवीजन। लाइक डिवीजन के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन बनता है। लाइक इन हरियाणा वी हैव हिसार डिवीजन के, वी हैव अम्बाला डिवीजन, तो वहाँ पे बैठता है डिविजनल कमिश्नर जो कि डीसी को कोऑर्डिनेट करता है। और सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपका डेजिग्नेशन बन जाता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, और स्टेट में आपका डेजिग्नेशन होता है सेक्रेटरी टू द स्टेट एंड एयर डिविजनल कमिश्नर। फिर आता है अबव सुपर टाइम स्केल 24 ईयर, यू बिकम प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब आप फील्ड पे नहीं होंगे, अब आप सेक्रेटरी में ही होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे या एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एपेक्स के ऊपर 30 साल की सर्विस, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी देखा होगा आपने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी देखा होगा, वो 30 साल की सर्विस वाले आईएएस है। एपेक्स लेवल टॉप, सिर्फ टॉप पे कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसके नीचे ये सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, उसके नीचे ये स्टार्टिंग लेवल है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल, फिर ऐसे ये एपेक्स लेवल। नेक्स्ट इज कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड 25 ईयर 35, और डिपेंड पॉलिटिकल मास्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी को जल्दी भी बना सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ओनली 1 पोस्ट, सिर्फ एक ही पोस्ट रहती है कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब सिविल सर्वेंट में सबसे पावरफुल कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ 21 साल की उम्र में सिलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो उनके बारे में बोला जाता है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, क्योंकि उनके पास टाइम स्पेन है अपनी जॉब का, 40 साल की सर्विस है, तो उनके चांसेस है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। अब जो 32 ईयर में सिलेक्ट होगा उसके चांसेस कम है कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर पॉलिटिकल मास्टर चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, चांसेस लेस है। तो इसलिए बोला जाता है कैच देम यंग, टैगलाइन है कैच देम यंग, यंग लोगों को कैच कर रही है यूपीएससी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कैडर एलोकेशन। मैनी स्टूडेंट दे आस्क मी सर मुझे तैयारी करनी है, मैं हरियाणा से हूँ लेकिन मुझे हरियाणा में डीसी बनना है, मैं जी महाराष्ट्र में हूँ, मैं महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा सकता, मुझे महाराष्ट्र में डीएम डीसी बन रहा है। आपके हाथ में तो नहीं है, आपकी रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या है ये कैडर एलोकेशन? कैडर क्या होता है? मतलब कुछ एक ज्वाइंट कैडर है, कुछ स्टेट के अलग है, जैसे हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, काफ़ी सारी स्टेट्स के अलग है। ज्वाइंट कैडर है, एक तो है आपका असम मेघालय, दोनों का एक ही कैडर है। तो जो यहाँ आईएएस है उसको कुछ टाइम आसाम, कुछ टाइम मेघालय, कुछ टाइम आसाम मेघालय, यहाँ मतलब चेंज किया जाता है, एक ही कैडर है। एक होता है एगमोट, AGMUT, इसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी, सब यूटी इसमें आ गई आपकी, चंडीगढ़ हुआ, अब जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया, लद्दाख भी हो गया, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, सब इसमें आ गया यूटी में। और इसके साथ 3 स्टेट भी है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम। मतलब काफ़ी अच्छा कैडर माना जाता है ये एगमोट। आप गोवा में जाएंगे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यूटी, चंडीगढ़, दिल्ली, आपकी मतलब अच्छी पोस्टिंग रहती है। तो अब आता है कि आपको हरियाणा मिलेगा या एगमोट मिलेगा या पंजाब मिलेगा या आपको महाराष्ट्र मिलेगा या आपको नागालैंड मिलेगा या मणिपुर मिलेगा, आपको कौन सा कैडर मिल रहा है? कैडर एलोकेशन। तो आप देखते हैं कैडर एलोकेशन। पहले होता था लाइक यू हैव टू गिव ए प्रेफरेंस फ्रॉम 1 to 24, ठीक है, 24 होते थे, अब ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंडर आ गया, तो आपको सीधी प्रेफरेंस देनी होती थी, तो उसमें कुछ रैंकिंग सिस्टम से आपको कैडर मिलता था। अब क्या किया है, अब ये जोनल सिस्टम है। व्हाट इज दिस जोनल सिस्टम? इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंटर। बता देता हूँ, द स्टेट्स और द ज्वाइंट कैडर
विल बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 जोन। ओके, पहले आप देख लेते हैं 5 जोन कौन कौन से। जोन 1 में क्या क्या आ रहा है, देखो नॉर्थ के आएंगे एगबुट, ऑल दो ठीक है, चलो अरुणाचल प्रदेश ये अलग है, बट इसमें दिल्ली मेन फोकस करते हुए इसको नॉर्थ में रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये अपने यहाँ के आ गए। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इज पार्ट ऑफ दिस, दिल्ली, चंडीगढ़ इज पार्ट ऑफ दिस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। जोन 2 आ गया आपका, लाइक हियर दिस इज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ओके, जोन 3 वेस्टर्न साइड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिस पार्ट गुजरात, महाराष्ट्र, बड़े बड़े स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर जोन 4 में आ रहा है ईस्टर्न साइड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। जोन 5 साउथ इंडिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। व्हाट हैपन हियर नाउ, दिस इज जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5। अब सिस्टम क्या है, आपने जोन में प्रेफरेंस देनी है। लाइक हियर हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल आई गिव फर्स्ट प्रेफरेंस, पंजाब सेकंड प्रेफरेंस, हिमाचल प्रदेश थर्ड प्रेफरेंस। जोन 2 यूपी फर्स्ट प्रेफरेंस, बिहार सेकंड प्रेफरेंस एंड सो। जोन 3 फर्स्ट प्रेफरेंस, महाराष्ट्र सेकंड प्रेफरेंस, एमपी थर्ड प्रेफरेंस, लाइक दैट। जोन 4, जोन 5, जोन 4 like here West Bengal first preference, Sikkim second preference, like that. Zone 5 तेलंगाना फर्स्ट प्रेफरेंस, आंध्र प्रदेश सेकंड प्रेफरेंस। अब होगा क्या सिस्टम में, डिपेंड ऑन योर रैंकिंग। आपकी पहली रैंक आ गई, आपकी जोन 1 की प्रेफरेंस हरियाणा है। इफ देयर इज ए सीट इन हरियाणा, हर स्टेट का कुछ एलोकेशन होता है, हरियाणा में सीट है तो आपको हरियाणा मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपकी पंजाब नहीं देखी जाएगी, आपकी जोन 2 की पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी। मतलब मेरी रैंकिंग फॉर एग्जांपल 60 है, तो व्हाट हैपन हियर इन दिस सिस्टम, दे विल सी मेरे लिए हरियाणा बचा नहीं, खत्म हो चुका है। यूपी एनी सीट, नो। देन दे विल सी गुजरात, नो। बंगाल, नो। तेलंगाना, नो। देन फिर देखेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस चेक करेंगे सब जोन की। जोन 1 से स्टार्ट होता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। या पता क्या होता है, आपको जोन को भी कैटेगराइज करना होता है। पहले आपको जोन की कैटेगरी देनी होती है, आपकी पहली प्रेफरेंस कौन सी जोन की है। पहले मेरे लिए फॉर एग्जांपल जोन 1 सबसे पहले मेरी पहली प्रेफरेंस है, तो उस प्रेफरेंस में से पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर सेकंड जोन पे जो आपने जोन प्रेफर किया उसकी पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे जो जोन आपने प्रेफर किया उसकी पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर फोर्थ नंबर पे आपने जो जोन दिखा है उसकी पहली प्रेफरेंस। फिर फिफ्थ नंबर पे जो जोन दिया है उसकी पहली प्रेफरेंस। अगर सब खत्म हो जाती है फिर हर जोन की सेकंड प्रेफरेंस में देखा जाएगा। मान लो अगर पंजाब में अवेलेबल है, मुझे पंजाब मिल जाएगा, नहीं है तो बिहार देखा जाएगा। फिर मेरी थर्ड प्रेफरेंस जोन वाइज जो है उसमें से सेकंड प्रेफरेंस, फिर यहाँ पे ऐसे। तो दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ योर कैडर एलोकेशन। नेक्स्ट इज पे, बेसिक पे एट एंट्री लेवल। आफ्टर द implementation of the 7th pay commission, the basic pay of entry level of IAS officer is, इनका स्केल है 56,100, लगभग 70,000 रुपये पॉकेट में आते हैं। डिपेंड, अगर आपकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में आपको आइलैंड अलाउंस मिलता है, आपका हिली एरिया में तो आपको हिली अलाउंस मिलता है, नक्सल एरिया में तो कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं। नोटेबली दिस बेसिक पे डज नॉट इंक्लूड द वेरियस अलाउंस। तो वेरियस अलाउंस क्या है, वो तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को सबको मिलते हैं, लाइक DA डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस। तो ये सब ऑल्सो यू गेट अदर देन योर बेसिक पे। एंड इफ यू आर पोस्टिंग इन आइलैंड यू गेट एक्स्ट्रा आइलैंड अलाउंस। इफ योर पोस्टिंग इज इन हिली एरिया यू गेट हिली एरिया अलाउंस, नक्सल एरिया अलाउंस, अदर पर्क्स। इसके अलावा क्या बोलते हैं, बंगला, नौकर, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी पहले बोल देते थे, अब तो घोड़ा तो नहीं है। अदर पर्क्स एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू IAS ऑफिसर अपार्ट फ्रॉम सैलरी इज प्रोवाइडेड बंगला along with other facilities like cook, gardener, security guard, household help. These
Officers also get government transport in addition to free of cost electricity and telephonic service. Electricity free है, telephone free है. Now here this is PSO, security officer, private, like personal. PA, रीडर, ऑफिस स्टाफ, डिपेंड आपका ऑफिस कितना बड़ा है उस हिसाब से आपको स्टाफ मिल रहा है. When on duty, officers get free accommodation in the government bungalow and the rest house. After retirement, get lifetime monthly pension among other benefit and facilities. Retirement के बाद pension मिल रही है. ये आके आपके pay and perks. Now next is nodal ministry. एक बार यूपीएससी ने आपकी रैंकिंग बना दी तो फिर कौन सी मिनिस्ट्री के साथ आपकी डीलिंग होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन. एंड देयर आर 3 डिपार्टमेंट, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो इसके साथ आपकी डीलिंग होती है. दिस इज योर नोडल डिपार्टमेंट, नोडल मिनिस्ट्री फॉर IAS पीपल. सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो. जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.